and good morning student. This is 12th lecture of series mathematical method, and in the last lecture we discussed about the scalar product and what are the characteristics of scalar product, and we do some numericals on the basis of a scalar product, right? So today we are going to discuss the another type of vector multiplication, that is what? Vector product. Vector product. And you all know that what is meant by vector product. If two vector quantities are multiplied with each other, if two vector quantities are multiplied with each other, then the product is a vector quantity, then the product is also a vector quantity, then it is called as vector product, right? So what is the definition of vector product? If the product of two vector quantities, if the product of two vector quantities is a vector quantity, then this product is called as vector product. Then this product is called as vector product. So what are the examples of vector product then? So you know that example, torque is the example of vector product, that is product of r bar is the perpendicular distance cross f bar is equals to tau bar. So these are the two vector quantities which are multiplied with each other, and we find the product of this quantity is a torque, and torque is also a vector quantity, right? Means what? It has a magnitude as well as direction. So another example is what? V bar. In circular motion we know that V, that is what? Omega bar cross R bar. Omega bar cross R bar is equals to V bar. Also we take, that is what? P bar cross R bar is equals to L bar, that is angular momentum. Barabar? Angular momentum is equals to linear momentum multiplied by this radius vector. This angular velocity multiplied by radius vector is equals to the linear velocity. So these are the examples of the vector product. And the question is how to find the magnitude of this vector product, right? How to find the cross product of vector product or vector product. So we know that if we have two vectors, that is P bar and Q bar, then what happened? If we multiply these two vectors, then P bar cross Q bar is equals to what? R bar. Right? And what is the magnitude of this R bar? So for that we have formula, magnitude of R bar is equals to magnitude of P bar cross Q bar, and this is equals to PQ sin theta n cap, where n cap is the direction, is the unit vector along the direction of a resultant, right? So this is the magnitude. This will give you magnitude of the result, and this n cap gives the direction. So this magnitude and direction. So this is the formula to find out the magnitude of two vector quantities, right? Now how to find the direction, right?
how to find the direction of a resultant, how to find the direction of resultant. So here we have two rules, that is right hand thumb rules or right hand screw rules, right? तो screw means what, जब screw को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू जो है ऊपर आता है, और जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे जाता है, ठीक है? तो इसी को देखते हुए हमको इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है, ठीक है? तो डायरेक्शन के लिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है P बार एंड Q बार, P बार एंड Q बार, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या, डायरेक्शन भी चाहिए, बराबर? सपोज वी हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, दैट इज this is what P bar and this is your Q bar, this is Q bar, right? And here we use a screw, right? So here this is a screw. So if we have to do P bar cross Q bar, P bar cross Q bar, then what is its magnitude? Then it is PQ sin theta, PQ sin theta. But what about the direction? This will give you magnitude, this will give you magnitude. And what about the direction? So for the direction we have to go from P to Q, P to Q. तो यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको, P से Q जाना है, तो P to Q जाने के लिए हमको स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, बराबर? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे, बराबर, तो ये जो टिप है, ये टिप किस डायरेक्शन में जाएगा? ये टिप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ आया? तो जब हम P to Q जाएंगे तो ये जो स्क्रू का टिप है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इस स्क्रू का टिप जाएगा वही डायरेक्शन होगा हमारे रिजल्टेंट का, बराबर? तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर n कैप है, बराबर, तो r, बराबर, तो दिस इज व्हाट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसी तरीके से अगर हमको Q बार P बार करना है, मीन्स व्हाट, Q से P आना है, बराबर? सो Q बार क्रॉस P बार, Q बार क्रॉस P बार, तो यहाँ पर हमारा ये स्क्रू, तो इधर यहाँ से यहाँ, बराबर? तो जब हमको Q से P आना है तो हमको किस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, राइट? सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ये जो टिप है, जब हम इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, बराबर, तो मीन्स व्हाट, स्क्रू को टाइट करेंगे और यहाँ पर स्क्रू को ढीला कर रहे हैं, और जब हम स्क्रू को ढीला करते हैं तो स्क्रू ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, मीन्स व्हाट, टिप उसका ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो वही उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। मीन्स व्हाट, ये तीनों जो वेक्टर है, वो तीनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, और ये हमेशा, ये रिजल्टेंट हमेशा इन दो वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमको इधर बताना है। तो यहाँ पर ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है? Q पहले और P बाद में, मीन्स व्हाट, Q से P जाना है। तो Q से P जाने के लिए हमको इस स्क्रू को इस डायरेक्शन में, मीन्स व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, और जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो टिप का डायरेक्शन इधर होगा। टिप किधर जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इधर किधर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टिप का डायरेक्शन ये, बराबर? तो यहाँ पर जब हम Q बार क्रॉस P बार करेंगे तो Q P साइन थीटा एन कैप, बराबर, ये किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो इन दिस वे you have to find the direction of a
रिजल्टेंट, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल भी हम कर सकते हैं, राइट। तो समझ में आया। तो जब हमको पी बार क्रॉस क्यू बार करना है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू साइन थीटा, बराबर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू साइन थीटा। और एन कैप क्या डिनोट कर रहा है, इसका डायरेक्शन। एन कैप क्या डिनोट कर रहा है, इसका डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन का वो क्या होगा, अपर डायरेक्शन, ठीक है। जब हमको Q से P जाना है मींस व्हाट, Q बार क्रॉस Q P बार करना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, QP sin थीटा, बराबर। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम घुमाएंगे तो टिप किस डायरेक्शन में जाना है, टिप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है मीन्स व्हाट, ये कम्यूटेटिव नहीं है, बराबर। जब हम P बार क्रॉस Q बार कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है। लेकिन जब हम Q बार क्रॉस P बार कर रहे हैं मींस व्हाट, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। जहां पर स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है मींस व्हाट, P बार क्रॉस Q बार जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट Q बार क्रॉस P बार के रिजल्ट के इक्वल होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं होती, बराबर। तो मैग्नीट्यूड उन दोनों का सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है, बराबर। दो वेक्टर सेम कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होता है, तो दो वेक्टर सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर सेम नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एंड देयरफॉर दे डोंट कम्यूट विद ईच अदर, right? So in this way you have to find the direction and magnitude of the vector product. तो समझ में आया what is the vector product? When two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied, then the product is a vector quantity, then it is called as vector product. So it is called as vector product. And how to find the magnitude of this? So magnitude of R bar is equals to magnitude of P bar cross Q bar is equals to PQ sin theta. And what about the direction? The direction के लिए कौन सा रूल है, right hand screw rule, right hand screw rule। और डायरेक्शन के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो n कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। n कैप इज व्हाट, n कैप इज द यूनिट वेक्टर along the direction of the resultant। n cap is what, it is the unit vector along the direction of resultant। n cap का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना, बराबर। और यूनिट वेक्टर मींस व्हाट, जिसका वैल्यू 1 होता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने देखा, first characteristic, vector product do not commutative, vector products are not commutative बोल सकते हैं, commutative means what, जब हमने 2 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 कर दिया तो ये दोनों कम्यूटेटिव है मींस व्हाट, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ तो उनका रिजल्ट सेम आता है। लेकिन जब हम P बार क्रॉस Q बार किए, बराबर, तो ये इक्वल नहीं था Q बार क्रॉस P बार से, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव। सेकेंड, vector product obeys the distributive law, vector product obeys distributive law, तो distributive law obey करता है मींस व्हाट, अगर A बार क्रॉस B बार प्लस C बार अगर है, बराबर, तो ये इसके साथ वेक्टर प्रोडक्ट करेगा A बार क्रॉस B बार प्लस
ए बार क्रॉस सी बार, ये हो सकता है. Means what? It is it obeys the distributive law. Third case, that is what special cases देखते हैं. Special cases. Special cases means what? When the angle are changes. So you know that P bar cross Q bar is equals to what? PQ sin theta. PQ sin theta. If theta is equals to 0, first, if theta is equals to 0, if theta is equals to 0, when theta is equals to 0 means what? These two vectors are parallel to each other. When theta is equals to 0 means what? These two vectors are parallel to each other. Then what happened? If we do the P bar cross Q bar, then what is its magnitude? PQ sin theta. Theta is equals to 0 and sin 0 is equals to what? 0. Sin 0 is equals to 0, and therefore if theta is equals to 0, P bar cross Q bar is also equals to 0. Is also equals to 0. Therefore, if this is a unit vector, that is what I cap, and this is also I cap, right? So what happened? If these two vectors are parallel to each other, then I cap dot I cap is equals to 0. Similarly, J cap dot J cap is equals to 0. Sorry, cross. J cap cross J cap is J cap cross J cap is equals to 0. Similarly, K cap cross K cap is equals to 0. Right? So these unit vectors, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. समझ में आया? तो एंगल जब अगर 0 होगा मीन्स और दो वेक्टर कैसे है? एक दूसरे को पैरेलल. जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, यहाँ पर क्या है? साइन. बराबर. पैरेलल है मीन्स व्हाट? एंगल उनके बीच में 0 होगा. तो साइन 0 कितना होता है? 0. साइन 0 कितना होता है? 0. तो इस सभी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है. तो यूनिट वेक्टर का क्या होगा भाई? यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर जो हो गए, सेम यूनिट वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सभी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. सेकेंड, अगर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180 है, बराबर, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कब होता है? जब ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में P बार और ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में Q बार, बराबर, दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री बना रहे हैं. बराबर, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना? 180 डिग्री. और जब हम इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो P बार क्रॉस Q बार इज इक्वल्स टू PQ साइन थीटा करना पड़ेगा. बराबर, और PQ साइन थीटा इज साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री इज आल्सो इक्वल्स टू 0 होता है, और P बार क्रॉस Q बार इज आल्सो इक्वल्स टू 0, इज आल्सो इक्वल्स टू 0, राइट? Similarly, if this angle theta is equals to 90 degree, if angle theta is equals to 90 degree, तो 90 डिग्री का में क्या होगा? See, if theta is equals to 90 degree, तो if theta is equals to 90 degree means what? ये अगर P बार होगा तो ये क्या होगा? Q बार. इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो ये P बार क्रॉस Q बार करेंगे, बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? PQ साइन थीटा, PQ साइन थीटा. तो ये साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, और साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1. थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ना, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, एंड देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय PQ इज PQ. तो P बार क्रॉस Q बार इज इक्वल्स टू PQ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो इसी तरीके से जब हम यूनिट वेक्टर को करने जाएंगे, बराबर, दो यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे को 90 डिग्री में होते हैं, बराबर, तो यहाँ पर इस तरीके से आई कैप जे कैप और K कैप, बराबर, तो P I to J, J to K and K to I, बराबर. तो यहाँ पर जब हम I कैप क्रॉस J कैप करेंगे, I कैप क्रॉस J कैप करेंगे, तो तीसरा जो वेक्टर है इन दोनों को परपेंडिकुलर, दिस इज I कैप, दिस इज I
I cap, this is J cap, and this is K cap. I cap, J cap, and K cap. These three are mutually perpendicular to each other. So if we do I cap cross J cap, I cap cross J cap, then which is the perpendicular vector, that is K cap. So this is what the resultant is what, K cap. बराबर. तो दोनों को जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वही उनका रिजल्टेंट होगा. तो समझ में आया. तो आई कैप क्रॉस जे कैप जब हम करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, के कैप आएगा. तो सेकंड जब हम जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, तो जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, आई कैप. दोनों को परपेंडिकुलर आई कैप. बराबर. जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप. और जब हम के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, जब हम के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो बचा कौन, जे कैप. तो जे कैप इज द रिजल्ट. तो जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स व्हाट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सभी पॉजिटिव्स आएंगे, ये सभी पॉजिटिव्स आएंगे. लेकिन हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स व्हाट, फर्स्ट जब हम जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस के कैप, माइनस के कैप. बराबर. तो जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो उनका रिजल्टेंट माइनस के कैप. सिमिलरली जब हम के कैप क्रॉस जी कैप करेंगे तो माइनस आई कैप. थर्ड जब हम आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप. ये इनका रिजल्ट आएगा. ठीक है. तो ये समझ में आया. सो दीज आर दी some properties of a vector product, right? So I hope आप लोगों को ये समझ आया होगा. तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ठीक है. तो तब तक के लिए थैंक यू.